بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آن نیوز کے ساتھ میں حسنہ حسین۔ بلٹن میں شامل کرتے ہیں کچھ علاقائی خبریں۔ بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرقیہ کا علاقہ جھانگڑا شرقی میں سیلاب متاثرین خواتین سراپا احتجاج۔ خواتین کا کہنا ہے کہ راشن سیلاب متاثرین کو نہیں مل رہا، بلکہ راشن تقسیم کرنے والے اپنے چاہنے والوں کو دے رہے ہیں۔ ہم کل بھی راشن لینے کے لیے آئے تھے، سارا دن کھڑے رہے۔ انتظامیہ نے کہا کہ تم کل آنا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر اجمل جبیل سے۔ جی اجمل، آگاہ کیجیے کیا تفصیلات ہیں؟ جی، اس میں موجود ہوں بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرقیہ کا علاقہ جھانگڑا شرقی میں۔ یہاں پر سیلاب متاثرین سراپا احتجاج ہیں کہ ہمیں راشن نہیں دیا جا رہا۔ صبح سے لے کر یہاں تک خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے جاننا چاہتے ہیں خواتین سے۔ جی، کیا کہنا چاہتے ہیں جی آپ؟ جی ہاں، ہم لوگ بیٹھے ہیں صبح کے، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ جو حقدار ہیں انہوں کو نہیں ملا۔ بہاولپور والے، گھلویں والے، تحصیل احمد پور والے، سب جھانگڑے شرقیہ والے بیٹھے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملا۔ جو آیا تھا ڈھیر تھا، تھوڑا تھا، وہ آپس میں لوگوں نے تقسیم کر لیا، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ سنی، ہم اپنی ایمان سے بات کر رہی ہوں، جھوٹ نہیں بول رہی میں۔ یہ سب ہمیں پہلے حکومت نہیں دیتی تھی، اب انہوں نے کہا ہے تو سب لوگوں کو، جیسے جو حقدار ہیں سیلاب والے، انہوں کو نہیں ملا۔ جو لوگ یہاں رہنے والے تھے کسی کو ملا نہیں، تو آپس میں تقسیم کر دیا انہوں نے، ہمیں نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ سیلاب متاثرین سراپا احتجاج ہیں کہ ہمیں امداد نہیں دی جا رہی۔ جو سفارشی لوگ ہیں وہ راشن لے گئے ہیں، ہمیں نہیں دے رہے۔ جی، ڈی سی بہاولپور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں امداد دی جائے اور ہمیں راشن دیا جائے تاکہ ہم اپنا بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ جی، بہاولپور ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر اجمل جبیل کی رپورٹ سے تحصیل احمد پور شرقیہ سسرالیوں سے حق مہر مانگنا جرم بن گیا۔ بیوہ اور 4-5 افراد نے مل کر بیوہ خاتون پر دھاوا بول دیا اور بیوہ کو تشدد کا نشانہ بنا کر گھر کا سارا سامان باہر پھینک دیا اور گھر سے نکال دیا اور گھر سے نہ نکلنے پر قتل کی دھمکیاں دینے لگے۔ بیوہ نے نگران وزیر اعلیٰ، IG پنجاب، DPO بہاولپور، DSP احمد پور اور SHO سے تحفظ دینے کا مطالبہ۔ احمد پور شرقیہ کا نواحی علاقہ موزہ گھنیا بستی لاڑ کی بیوہ خاتون فرحانہ بی بی اپنے بچوں کے ہمراہ صحافیوں کو بتایا کہ میں نے اپنے سسرالیوں سے اپنا حق مہر مانگا اور کہا کہ مجھے میرے نام کر دیں، جو میرا جرم بن گیا ہے۔ میرا دیور عدنان عرف دانی اور اس کے ساتھ 4-5 افراد نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا اور میرے گھر کا سامان توڑ پھوڑ کے باہر پھینک دیا اور کہا کہ اگر یہاں سے تم نہ گئی تو تمہیں جان سے مار دیں گے، اور سسرالیوں نے مجھے اور میرے بچوں کو گھر سے نکال دیا ہے۔ بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے بیٹھی ہوں، جس پر میں نے 15 پر کال بھی کی ہے اور میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، IG پنجاب، DPO بہاولپور، DSP احمد پور اور SHO سے پرزور اپیل کرتی ہوں کہ میں بیوہ خاتون ہوں، کہاں جاؤں؟ سسرال والے میرے اور میرے بچوں کے دشمن بن گئے ہیں، مجھے تحفظ دیا جائے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور مجھے حق دلایا جائے۔ چودھری محمد امجد، بیورو چیف ساہیوال ایڈیشنل IG ہیڈ ٹریفک پولیس پنجاب مرزا فاران بیگ اور ریجنل پولیس آفیسر ساہیوال محبوب رشید کے احکامات پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساہیوال فیصل شہزاد کی ہدایات پر ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ساہیوال سعید احمد لودھی نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس ساہیوال میں ٹریفک آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ DTO ساہیوال نے کہا ہے کہ نوجوان طلبہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، انہیں روڈ سیفٹی اور حادثات سے بچاؤ کے لیے آگاہی فراہم کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ ان خیرات کا اظہار انہوں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس ساہیوال میں ٹریفک آگاہی سیمینار میں اساتذہ اور طلباء سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے طلباء کو روڈ سیفٹی کے متعلق مناسب ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق اب ہیلمٹ کا چلان 2000 ہو گیا ہے۔ موٹر سائیکل سوار سیفٹی ہیلمٹ کا استعمال لازمی کریں۔ ہیلمٹ کا استعمال حادثے کی صورت میں موٹر سائیکل سوار کو 80% سر کی چوٹ سے محفوظ رکھتا ہے۔ 18 سال سے کم عمر طلباء لائسنس کے بغیر موٹر سائیکل کا استعمال ہرگز نہیں کر سکتے، یہ قانوناً جرم بھی ہے۔ روڈ پر چلتے ہوئے ڈسپلن کو فالو کریں اور ایسے ہر اقدام سے باز رہیں جن سے اپنی اور دیگر روڈ یوزرز کی جان کے لیے خطرے کا باعث بنتا ہو۔ تیز رفتار سے اجتناب اور لین لائن کی پابندی پر عمل کریں۔ ہمیں ایک مہذب معاشرے کا شہری ہونے کے ناطے ٹریفک قواعد اور ضابط کی پاسداری پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ مزید کہا کہ سموک کے دوران ماسک کا استعمال کریں، ماحول کو فضائی آلودگی سے بچائیں۔ سیمینار کے اختتام پر کرنل ریٹائرڈ حسن امان، ڈائریکٹر غلام سرور، ایڈمن مینیجر نے طلباء کو روڈ سیفٹی کے متعلق آگاہی فراہم کرنے پر ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ساہیوال سعید احمد لودھی اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور اس اقدام کو سراہا۔
लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाड़काना की जानिब से तहसील डोकरी में खुली कचहरी का इनेकाद। एसएसपी लाड़काना सैयद अब्दुल रहीम शराजी ने सैकड़ों शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर हल करने के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सिविल सोसाइटी और मीडिया पर्सन समेत तमाम मकतबा फिक्र के बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। शहरियों की जानिब से ज़मीन और जायदाद, रिश्तेदारियों, लेन देन और आपसी घरेलू तनाज़ात समेत दीगर मसाइल पेश किए गए, जिन पर एसएसपी लाड़काना ने बीसीओ मसाइल मौके पर हल किए, जबकि कुछ दरख्वास्तों पर इंक्वायरी और मेरिट की बुनियाद पर शफाफ तफ्तीश करने के अहकाम जारी किए। शहरियों ने अमन और अमान बहाल रखने के लिए डोकरी तहसील में मजीद नफरी समेत पुलिस चौकियों को फाल करने की तजावीज़ पेश की, जिस पर एसएसपी लाड़काना ने मौके पर ही डीएसपी डोकरी गुलाम महिउद्दीन क्लोर, डीएसपी यूटी जहूर अहमद सोमरू और शीट क्लर्क को जरूरी हिदायत और अहकाम जारी किए। खुली कचहरी से पहले एसएसपी लाड़काना ने जामिया मस्जिद डोकरी में नमाज जुमा अदा की और वहां मौजूद शहरियों से अमन अमान बाबत तबादला ख्याल करते हुए मस्जिद के खतीब के इसरार पर नमाजियों से मुखातिब हुए। एसएसपी लाड़काना ने डीएसपी डोकरी को मंशियात फरोशों और सूदखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम जारी किए। एसएसपी लाड़काना ने कहा कि शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने और दाद रसी करने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है। पीरमहल में भी निगरान हुकूमत की जानिब से गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेट करने के फैसले पर सरकारी स्कूलों के मर्द खवातीन उस्ताज़ा एहतजाजन सड़कों पर निकल आए। उस्ताज़ा ने अल्लाहवाला चौक में डेरे डाल लिए। हुकूमत से फौरी फैसला वापस लेने का मुतालबा। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर की तरह पीरमहल में तालीमी अमल रोक दिया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स और बॉयज स्कूल्स की तालाबंदी करके टीचर्स ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तलबा तलबात ने भी उस्ताज़ा के हमरा प्ले कार्ड उठाकर पंजाब हुकूमत के इक़दामात के खिलाफ शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और खूब नारेबाजी की। एहतजाज में शामिल उस्ताज़ा और प्रिंसिपल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुकद्दस पेशे से मुंसलिक उस्ताज़ा को जलील किया जा रहा है, जो इंतहाई अफसोसनाक अमर है। जब तक हुकूमत फैसला वापस नहीं लेगी, तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी और एहतजाज जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं कोड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ की ज़ेर सदारत ज़िला मॉनिटरिंग कमेटी बराए इंडस्ट्रीज़ का इजलास में तमाम मुताल्लिका महकमों के अफसरान ने इंसदाद समूह से मुताल्लिक किए जाने वाले इक़दामात से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। इंसदाद समूह के लिए तमाम मुताल्लिका महकमे कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने बताया कि इंसदाद समूह का सबब बनने वाले भट्टा खशत फैक्ट्रियों कारखानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएँ। डिप्टी कमिश्नर कोड़ा ने कहा है कि धान की बाकियात को आग लगाने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जिला में ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के अलावा कोई भट्टा खशत नहीं चलना चाहिए। जो फैक्ट्रियां और कारखाने इंसदाद समूह का सबब बन रही हैं, इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। फील्ड अमला के जरिए काश्तकारों को धान की फसलों को आग न लगाने से मुताल्लिक रोजाना की बुनियाद पर आगाही दी जाए। तमाम मुतल्लिका महकमे रोजाना की बुनियाद पर अपनी रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जमा करवाएं। भट्टा खश्त फैक्ट्रियों, कारखानों और दीगर काम करने वाले इदारों के मुलाजमीन के सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स बनाए जाएं। फैक्ट्री मालकान, भट्टा मालकान दीगर से मुशावरत करके सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स की तादाद को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, ताकि कम आमदनी वाले लोग सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स इस्तेमाल करके मुफ्त इलाज मुआवजा से इस्तेफादा कर सकें। तालका रिपोर्टर उबाड़ू गुल मोहम्मद जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक उबाड़ू के करीब खंबड़ा थाना की हदूद गांव जमालुद्दीन दश्ती में दर्जनों मुसल्लह अफराद का एक घर में घुसकर हमला, फायरिंग, 50 साला कादिर बख्श दश्ती और इसकी अहलिया होतनी दश्ती कत्ल और इनके 2 बेटे शाका और 10 साला मोहम्मद नवाज शदीद जख्मी। मुसल्लह अफराद फायरिंग करते हुए फरार। पुलिस की नाकाबंदी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। तफसीलात के मुताबिक उबाड़ू खंबड़ा थाना की हदूद गाँव जमालुद्दीन दश्ती में दर्जनों मुसल्लह अफराद ने एक घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में गोलियां लगने से 50 साला कादिर बख्श दश्ती और इसकी अहलिया होतनी दश्ती मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि मकतूलीन के 2 बेटे शाका और 10 साला बिजा मोहम्मद नवाज शदीद जख्मी हो गए। मकतूलीन की लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। इत्तला मिलते ही पुलिस ने नाकाबंदी करके इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, जबकि मुलजमान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक हमले की वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस सुल्तान अली ख्वाजा और डीआईजी मोटरवे मोहम्मद सलीम चौधरी के अहकामात और सेक्टर कमांडर जावेद इकबाल चौधरी की हिदायत की रोशनी में रोड सेफ्टी अवेयरनेस यूनिट की रोड सेफ्टी आगाही मुहिम जारी है। इसी सिलसिला में आज रोड सेफ्टी अवेयरनेस यूनिट ने सुपीरियर इलामा इकबाल कॉलेज फॉर बॉयज कोचरा में रोड सेफ्टी वॉक का इनेकाद किया। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीक की ये रिपोर्ट।
वाक का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। वाक में रोड सेफ्टी अवेयरनेस यूनिट M4 कॉलेज उस्ताजा स्टाफ तलबा और मकामी साफियों ने शिरकत की। वाक के शुरका ने रोड सेफ्टी और फॉग स्मोक बारे बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। वाक कॉलेज अजा से शुरू होकर हफीज पार्क रोड से होती हुई जंग रोड पर अख्ताम पजीर हुई। ट्रैफिक कवानीन के असूल जवाबत पर अमल पैरा होकर ही हादसा में कमी मुमकिन है। सेक्टर कमांडर जवेद इकबाल चद्दड़ का कहना था कि अवाम नास में ट्रैफिक कवानीन के शऊर के लिए आगाही मुहिम जारी रखी जाएगी। स्मोग और फॉग की वजह से हादसा रूनमा होते हैं जिसमें कीमती जानों का नुकसान होता है। मोटरवे पुलिस दस्तयाब वसाइल के साथ अवाम नास की बेहतरी के लिए कोशा है। कैमरामैन आसिफ के साथ मैं मुनासिर सदीक ऑन न्यूज़ टोबा सिंह। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से नारोवाल साबिका वफाकी वजीर मनसूबाबंदी प्रोफेसर एहसन इकबाल का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, आज दिल बड़ा बोझल है और हर मुसलमान का दिल बोझल है। हम रोशनियों में बैठे हैं, अमन में पुरसकून बैठे हैं, लेकिन गजा में हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई करबला में बैठे हैं। इनका पानी बंद हो चुका है, बिजली बंद हो चुकी है, घर मौत के घाट बन चुके हैं। इनके घरों पर इसराइल बमबारी कर रहा है। ये वो वक्त है जब पूरी उम्मत मुसलमान का इम्तिहान है। अमेरिका के अंदर एक ऐसी लाबी मौजूद है जो इस्लाम दुश्मनी में अंधी हो चुकी है। 9 मई को जो PTI ने फौज पर हमला किया, जो इमरान खान की निगरानी में साजिश तैयार हुई थी, इसका मकसद ये था कि फौज के अंदर बगावत दरार पैदा की जाए ताकि पाकिस्तानी कौम को अपनी फौज के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बचाने के लिए जो दलील दी जाती है कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का कंट्रोल फौज जैसे मजबूत इदारे के हाथ में है, वो पाकिस्तान की दलील खत्म करके आलमी सतह पर मुकदमा बनाया जाए कि अब तो पाकिस्तानी फौज तकसीम हो गई है, इसके अंदर बगावत हो गई, लिहाजा पाकिस्तान एक गैर महफूज एटमी ताकत रह गया है। सलाम पेश करना चाहता हूँ पाकिस्तानी कौम को जिसने 9 मई को इस साजिश को नाकाम बनाकर एटमी प्रोग्राम को बचा लिया। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गुगेरा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक SHO हाफिज अतहर रशीद की सऊदी अरब उम्रा पर रवानगी, मतहतों की मनमानियां जारी, भत्ता और रिश्वत खोरी अरूज पर। SHO हाफिज अतहर रशीद की अदम मौजूदगी में मतहत मुलाजमीन की मौजें, शरीफ शहरियों को हरासा करके भत्ता वसूली का धंधा अरूज पर बताया जाता है। थाना गुगेरा के SHO हाफिज अतहर रशीद उम्रा के लिए रवाना हुए। सब इंस्पेक्टर जावेद असलम ने SHO की अदम मौजूदगी का भरपूर फायदा उठाते हुए शहरियों को मुख्तलिफ हीले बहानों और तौर तरीकों से हरासा करके, जबकि माजी में मामूली जुर्म में मुलव्वस रहने वाले अफराद को डरा धमका कर रिश्वत बटोरने का सिलसिला बड़े धड़ल्ले से शुरू कर रखा है। हमारा नुमाइंदा राशिद अली शहरियों के पास मौजूद है। जी राशिद अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना गुगेरा के SHO हाफिज अतहर रशीद जैसे ही उम्र की तरफ रवाना हुए, थाना गुगेरा के एहलकार सब इंस्पेक्टर जवेद अशरफ ने रिश्वत का जो बाजार है वो गर्म कर रखा है। मेरे पास इस वक्त एक बाबा जी मौजूद है जिनके साथ कुछ चंद दिन पहले डकैती की वारदात हुई थी, मोटरसाइकिल चोरी हुआ था, कुछ पैसे जो थे वो भी यानी कि डाकू जो है वो ले गए थे, और फिर इसी बाबा जी ने उन डाकुओं को पहचाना था और पहचानने के फौरन बाद उसने थाना में जो है वो FIR जो है वो दर्ज करवाई थी। सब इंस्पेक्टर जावेद असलम ने वो FIR काटी थी, उसी सिलसिले में रिकवरी भी हुई थी। हम जानते हैं कि बाबा जी को कि उन्होंने रिकवरी के बाबा जी को पैसे कितने दिए थे। जी बाबा जी। 10वें महीने की 18 तरीक ਨੂੰ बुध ਦਾ दिन शाम ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਬੀਬੀਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕ ਰੋਡ ਉਸ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ। ਅਸਲਮ ਜਿਹੜਾ ਜਵੇਦ ਅਸਲਮ ASI ਆ, ਇਹਨੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੈਂ ਆਪ ਡਕੈਤ ਪੜਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ 30,000 ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ मैं ਤੈਨੂੰ मोटरसाइकिल देऊंगा। आप बाबा 30,000 रुपये। इसके अलावा आपसे उन्होंने आपको कितने पैसे दिए? 30,000। 30,000 के अलावा मोटरसाइकिल नहीं दिया? नहीं दिया। मोबाइल नहीं दिया? नहीं दिया। और कुछ पैसे जो आपसे चोरी हुए थे वो भी नहीं वापस नहीं, किए? 30,000 देता। इसी तरह से नाज़रीन, मेरे पास एक और भी दोस्त मौजूद हैं जिनकी कुछ अर्सा पहले लड़ाई हुई थी और उस सिलसिले में उनके ऊपर FIR की गई थी। उन्होंने जावेद असलम को पैसे भी दिए थे, रिश्वत भी दी थी, लेकिन अभी जानते हैं कि उनसे कितने पैसे लिए और उनका जो मसला है वो अभी तक हल क्यों नहीं करवाया। जी मैं चौथी जीड़ी का रहने वाला हूँ, अब्दुल रज़ाक मेरा नाम है। मेरे बेटा और 2 पिंड के और बच्चे जो नजायज़ एक डॉक्टर वैक्सीनेटर था उधर क्लिनिक खोली, वो उसने कोई रिश्ते की डिमांड की, उन कुछ दिन जलील करता रहा, अखीर जाकर रिश्ता मंगा, उन्हें जवाब दिया, उन्हें छाल खुद मारी।
ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਿਆ 15 ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਵੇਦ ਅਸਲਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਬਈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਛਾਲ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਰ ਪੱਟੇ ਮੁੰਨਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿਸਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਪਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਜੰਗਲੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਟਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਈ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਡਕੇਟ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਲਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰੋਡ ਤੇ ਡਕੇਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੱਕਰ ਚੌਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਟ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ DPO ਬਾੜਾ ਸੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ। नाजरीन, मजलूम का कहना है कि RPO साहिवाल और DPO उकाड़ा से इनकी अपील है कि इनको जल्द अज जल्द जो है इनकी रिकवरी वापस की जाए और इनको जो है इंसाफ दिलाया जाए। जी, महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। इस महंगाई की सुनामी में ऐसा तबका भी शामिल है जो मज़ाहिया खाके बनाकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालने की कोशिश में रहता है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आमिर शहजाद जाफरी से। जी आमिर शहजाद, बताइएगा कि महंगाई की वजह से फनकारों को क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ा है। जी आमिर शहजाद, अपडेट करने के लिए। बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि महंगाई की वजह से हर बंदा, हर इंसान परेशान है और इसी तरह एक ऐसा तबका भी है कि जो सारा दिन एक चैनल पर अपनी वीडियो अपलोड करने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए सारा दिन मेहनत करता है। लेकिन वो तबका जो है वो फ़नकार है। हमारे साथ फ़नकार मौजूद है। मज़ीद इनसे जानते हैं कि इस महंगाई में फ़नकारों को क्या क्या मसाइल पेश आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं की दसा जनाब तुहानू महंगाई के बारे। फनकार असी लोगों तो हसाने हैं लेकिन आप असा जनाब खत्म हो पे। महंगाई ने इतना साड़ी तबाही कर दी। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਲਵੀਏ, ਗੈਸ ਭਰਾਵੀਏ ਜਨਾਬ, ਘਰ ਦੇ ਖਰਚਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਵੀਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਤਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਦਿਲ ਆਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟੱਪ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਟੱਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰ ਤਰੀਕਲ ਤਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਤਰ ਗਰੀਬ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਅਮੀਰ ਤਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਨਾਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ जितनी इस वेरी मैं जितनी होई खली है जनाब। जे पेट्रोल दर महीने पेट्रोल नहीं लै सकते, जे घ्यो दर महीने घ्यो दर नहीं लै सकते, चीनी नहीं लै सकते। महंगाई के बारे दसीए कि देखो जी, मैं हर साल तकरीबन नवे कपड़े लैके एक सूट सिवाइंदा हूँ। ये हुण मैनू 3 साल है मैं लंडा पा रहा। ये महंगाई है तो मैं पा रहा ना जी। अगर मैं अच्छे कपड़े आप पावां तो मैं बच्चों को कोई नहीं खवा सकता, ना उन्होंने पिवा सकना। मैं हुण जावां तो जावां किहड़े पासे। महंगाई खत्म कर दिता सानू। गरीब तबका हमेशा वास्ते ख़त्म हो गया। असी किहड़े पासे जावीए जनाब। मेरी हुकूमत जिहड़ी पाकिस्तान की हुकूमत सारे नूं अपील है कि महंगाई ते कंट्रोल किया जाए तो साढ़े गरीब नूं ना बचाओ, नहीं तो गरीब मर जाए। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारे साथ थे जो पाकिस्तान के नाम पर एक फ़नकार भी हैं और यूट्यूबर भी हैं राकट साहब। इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे ताकि जो फ़नकार लोग हैं ये भी अपने बच्चों का जो पेट है वो भर सकें। खबर शामिल करते हैं नुमाइंदा दिशान भवन हाफिजाबाद जलालपुर पर काम तेजी से किया जा रहा है। अवाम का डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद के मशकूर हैं जिन्होंने जलालपुर रोड को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पंजाब की तरह भक्कर में भी एपका के कारकुनों ने तालाबंदी करते हुए एहतजाज शुरू कर दिया। एपका के कारकुनों ने दफातर को ताला लगा दिया और एहतजाज शुरू कर दिया। सूबाई सदर एपका राना अब्दुल रशीद ने बताया कि मुतालबात की मंजूरी तक वो एहतजाज जारी रखेंगे। आइए देखते हैं एपका रहनुमाओं ने क्या कहा। जनाब हम इधर बैठे हैं हड़ताल में। जब तक हमारे मुतालबात निगरान हुकूमत पूरे नहीं करती हम हड़ताल जारी रखेंगे। जो हमारे लाहौर बहन भाई गए हुए हैं उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, उनको छोड़ा जाए। हमारी मजम्मत है सबकी। और हम लोग जब तक हमारे ये जो पेंशन के केस जो हैं ये हमारा नहीं करेंगे तो हम नहीं उठेंगे। इधर ही बैठे रहेंगे, उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। ज़िला बंद है, ज़िले की हड़ताल है और तालाबंदी है और सब लोग हमारे आल महकमा जात सब लोग इधर हैं और इधर ही बैठे हैं। साल बाद ये जो पेंशन सिस्टम साल दे एग्रीमेंट वगैरह जी खत्म कर दी पी गवर्नमेंट 70 साल तो ये चलता पिया सिस्टम। मेहरबानी करे जी चलता पिया चलन देना।
अगर करना भी है तो आने वाली भर्ती वास्ते करें, नली वास्ते। पुराने लोग जेडे हैं बेचारे 34 35 40 साल सर्विस की थी, तो कितना बैठे देख रहे हैं। खबर शामिल करते हैं मरीदके से। हमारे तहसील रिपोर्टर इमरान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह मरीदके में भी फ़लस्तीन में होने वाले मुजालिम और इसराइल के गासबाना कब्जा के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों के ज़ेर इंतज़ाम एक एहतजाजी रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के सिलसिला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम एक रैली का इनकाद किया गया, जिसमें ज़िंदगी के हर शोबा से तल्लक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने मुख्तलिफ कुतबे और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर फ़लस्तीन की हमायत और इसराइल के खिलाफ नारे दर्ज थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NA 113 के टिकट होल्डर चौधरी साबिर हुसैन बल्ला का कहना था कि फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर इसराइली अफवाज की तरफ से जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जबकि मगरबी दुनिया बिल्कुल खामोश है। उम्मत मुसलमान को इस मुश्किल वक़्त में इत्तेहाद और यगानियत का मुजाहरा करते हुए अपने मुसलमान भाइयों की हर तरह से मदद करनी चाहिए। हुकूमत वक़्त पर फ़र्ज है कि फ़लस्तीन भाइयों का साथ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अली, ऑन न्यूज़ मरीद के। वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक कायद पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत के मुताबिक PTI आज़ाद कश्मीर का मुजफ्फराबाद में फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहिरा। सदर PTI आज़ाद कश्मीर और साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल कयूम न्याज़ी की क़यादत में सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद के एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद किया गया। सीनियर नायब सदर जफर अनवर, जनरल सेक्रेटरी मीर अतीकुर रहमान, साबिक वज़ीर हुकूमत लाला हनीफ, नायब सदर शफीक जाकवी, जॉइंट सेक्रेटरी सरदार अर्जिश, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जमील सादिक, बासित कुरैशी, साबिक उम्मीदवार असम्बली आरिफ मुगल, साबिक चेयरमैन MDA अजहर गिलानी और दीगर ने शिरकत की। साबिक DGPM सेक्रेटेरिएट मोहसिन अवान, नौजवान रहनुमा अहमद मकबूल मुगल, जुनेद मुगल और दीगर की भी शिरकत। फ़लस्तीन में जारी इसराइली जाहिरियत और गासबाना कब्जे के खिलाफ शदीद नारेबाजी, इसराइल का झंडा भी नजर आतिश कर दिया गया। फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम न्याज़ी। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल डिग्री ओलख की बच्चियां भी इसासा के हक में क्लासों का बाइकआउट करते हुए बाहर निकल आई। उसासा की स्ट्राइक के बाद बकर के नवाही कस्बे के स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल ओलख की तलबा भी क्लासों का बाइकआउट करते हुए बाहर निकल आई। तलबात ने हाथों में कुतबे उठा रखे थे, जिन पर मुतालबात। अब रुक करते हैं मरीदके का, जहां पर हमारे तहसील रिपोर्टर इमरान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मरीदके में मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीनी भाइयों के हक में एक रैली का इनेकाद किया गया। रैली का आगाज़ मस्जिद खैबर से शुरू हुआ और DT रोड मरीदके पर इख्तिताम पजीर हुआ। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मरीदके में मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीनी भाइयों के हक में एक रैली का इनकाद किया गया। रैली का आगाज़ मस्जिद खैबर से शुरू हुआ और GT रोड मरीदके पर एहतमाम पजीर हुआ। रैली में मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार MPA PP 137 मियाँ नसीर खालिद महमूद वट्टू की क़यादत में मरकजी मुस्लिम लीग के कारकुनों और ज़िंदगी के हर शोबा से तल्लक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली में शुरका ने फ़लस्तीन भाइयों की हमायत और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की। रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं, जब भी हमारे खून की ज़रूरत पड़ी तो आखिरी कतरे तक खून बहाएंगे। और आखिर में फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ भी की गई कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनी भाइयों की गायबाना मदद फरमाए और इनको फतह नसीब फरमाए, आमीन। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अली, ऑन न्यूज़ मरीद के। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां छीनी गई। 5 मोटरसाइकिल्स रिकवर करके तस्दीक के बाद असल मालकान के हवाले कर दी गई। मुलजमान गिरफ्तार, कानूनी कार्रवाई कर दी गई। थाना सिटी और सिविल लाइन जैकबाबाद SSP जैकबाबाद सैयद आमिर अब्बास शाह के सख्त अहकामात बराए छीनी गई चोरी शुदा मोटरसाइकिलों की रिकवरी को मद्देनजर रखते हुए SHO थाना सिटी SIP अब्दुल रज़ाक तगड़ और SHO थाना सिविल लाइन SIP फिदा हुसैन शेख बमा स्टाफ की कामयाब कार्रवाइयाँ शहरियों से छीनी गई मोटरसाइकिलों को रिकवर
रिकवर करके तस्दीक के बाद असल मालकान के हवाले कर दिया। निसार अहमद वल्द यार मोहम्मद लाशारी, दानिश वल्द अशोक कुमार हिंदू, इम्तियाज अली वल्द गुल हसन अब्बासी, खिजर वल्द रफीक अहमद कुरैशी, जावेद अहमद वल्द नूर हसन टानरी के हवाले कर दी गई। शहरियों ने मोटरसाइकिलों की रिकवरी पर डीएसपी सिटी इकबाल अहमद शेख, एसएचओ सिटी एसआईपी अब्दुल रज़ाक तगर और एसएचओ सिविल लाइन एसआईपी फिदा हुसैन शेख का शुक्रिया अदा किया। जबकि मुकामी पुलिस ने मुलजिम सादिक अली वल्द गुलाम मुर्तजा मंदरानी, सकना गोट जाफर खान मंदरानी, तालका गढ़ी खैरू जिला जैकबाबाद, मुर्तजा वल्द इमदाद अली दश्ती सकना एडीसी कॉलोनी जैकबाबाद को गिरफ्तार करके मुतल्लिका थानों पर मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां कर दी गई। करते हैं आरावाला से मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला तहसील भर सरकारी मुलाजमीन पंजाब हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज, नगर नगर एहतजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं। साजा ने अलामती हथकड़ियां लगा ली। पंजाब के दीगर शहरों की तरह आरावाला शहर में नई हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ साजा तदरीसी अमल का बायकॉट करके सड़कों पर आ गए। मैं भी नए हुकूमती रूल्स के खिलाफ साजा के साथ दीगर सरकारी इदारों के मुलाजमीन भी मैदान में आ गए। साजा ने खुद को अलामती हथकड़ियां लगा ली हैं, तदरीसी अमल का बायकॉट करके सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने मज़ामती प्ले कार्ड उठाकर ज़बरदस्त नारेबाजी की। मलिक अतीकुर रहमान, आदिल इसहाक चौधरी, मसूद अरशद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाहौर में पुरअमन एहतजाज करने वाले साजा मुलाजमीन की गिरफ्तारी इंतहाई काबिल मज़म्मत है। हुकूमत साजा का मौशी कत्लेआम बंद करे, पेंशन, ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट पर डाके को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत सरकारी स्कूल्स की निजकारी का फैसला वापस ले। गुज़िश्ता 10 साल से एडहॉक पर मुलाजमत करने वाले SST टीचर्स को मुस्तकिल किया जाए। उस्ताज़ा कूक की दुश्मन किसी हुकूमती पॉलिसी को नहीं मानते, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। साजा के साथ बल्दिया महकमा सेहत के मुलाजमीन भी एहतजाजी धरने में शरीक होंगे। खबर शामिल करते हैं नुमाइंदा ज़ीशान भवन हाफिजाबाद जलालपुर रोड पर काम तेजी से किया जा रहा है। अवाम का डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद के मशकूर हैं, जिन्होंने जलालपुर रोड को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से पंजाब हुकूमत की खुसूसी हिदायत पर शेखुपुरा में भी बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद की ज़ेर सदारत बिजली चोरी की रोकथाम के हवाला से इकदामात का जायजा लेने के लिए हम इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उस्मान जलीस, असिस्टेंट कमिश्नर SE वापटा, पुलिस और स्पेशल ब्रांच के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में अवाम पर बोझ बनने वाली बिजली चोरों के गिर्द घेरा मजीद तंग करने का फैसला किया। SE वापटा शेखुपुरा सर्कल की डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद को बिजली चोरी की रोकथाम के हवाले से ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने इजलास से खिताब करते हुए बताया कि अब तक 1462 मुकामात पर बिजली चोरी की निशानदेही की जा चुकी है। बिजली चोरी में 1420 डोमेस्टिक, 27 कमर्शियल, 10 ज़रई और 5 इंडस्ट्रियल सार्फिन मुलव्वस पाए गए हैं। बिजली चोरी करने वाले 1459 अफराद के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए इस्तग़ासा जांच जमा करवाए गए हैं। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिवीजन जनरल सेक्रेटरी साबिक रुकन सूबाई असम्बली उम्मीदवार PP 137 पीर सैयद अशरफ रसूल ने कहा है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, जिनका मिसाली इस्तकबाल किया जाएगा। जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, रहनुमाई के लिए नवाज शरीफ सामने आए। मुल्क को एटमी ताकत के इजहार का चैलेंज दरपेश था। नवाज शरीफ ने कौम को सरखरू किया। पूरी दुनिया एक तरफ थी, लेकिन नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए। नून लीग ने नवाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत संभाली तो दहशतगर्दी और बिजली की लोड शेडिंग का मसला दरपेश था। नवाज शरीफ ने मुल्क में दहशतगर्दी और लोड शेडिंग पर काबू पा मुल्क को पायदार अमन दिया और तरक्की की राह हमवार की। पाकिस्तान को इस वक्त नवाज शरीफ की आजमूदा लीडर की जरूरत है, जो मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकाल सकते हैं। शेखपुरा से आपको बताते चलें, यौम यकजहती फ़लस्तीन के सिलसिला में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। प्रेस क्लब शेखपुरा के ज़ेर तमाम भी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहरे से सदर प्रेस क्लब राना मोहम्मद उस्मान, जनरल सेक्रेटरी मुस्तफ़ा खान, ग्रुप लीडर मुबशर हसन भट्ट, सीनियर सहाफ़ी अजीम अहमद यज़दानी समेत दीगर ने खिताब करते हुए सेहूनी रियासत इसराइल की जारहियत की मज़म्मत करने के साथ फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती करते हुए अक़वामी आलम से इसराइली जुल्म और बर्बरियत बंद करवाने का मुतालबा किया। मस्करी मुस्लिम लीग के ज़रिए तमाम बाद नमाज जुम्मा मरकज़ खालिद बिन वलीद रीगल चौक से एहतजाजी रैली
ریلی نکالی گئی جو جناح پارک چوک پہنچ کر جلسہ کی شکل اختیار کر گئی، جس کی قیادت مولانا سلیم اعظم بلوچ، مفتی عبد الرحمان سر، حافظ محمد نئی، مولانا عبداللہ سلیم چودھری، طارق محمود گجر، حافظ محمد آصف مغل، چودھری شکیل گجر، ملک افضل اوان، دیگر رہنماؤں نے کی، جبکہ پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے محمد شاداب رضا نقشبندی، محمد وسیم نقشبندی، دیگر رہنماؤں نے کہا کہ اسرائیل کی اس جارحیت کو فوری بند کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلع رہنما انجینئر رانا اسد اللہ خان نے کہا ہے کہ بیت المقدس اور فلسطین کی آزادی سے ہی دنیا میں امن قائم ہوگا۔ اسرائیل کی ناجائز سے ہونی ریاست دنیا میں دہشت گردی کا مرکز بنی ہوئی ہے، فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے اقدامات سراسر دہشت گردی ہیں، معصوم بچوں کے قتل عام کی کسی قانون میں اجازت نہیں ہے۔ غزہ میں پانی اور بندش اسرائیلی عزائم کو ظاہر کرتی ہے۔ عالمی برادری اس کا نوٹس لے کر فلسطین پر حملہ ننگی جارحیت ہے۔ صہیونی ریاست اسرائیل کے ناجائز قبضے کے خلاف اہل فلسطین کے جدوجہد آزاد کی جنگ ہے۔ حالیہ اسرائیلی جارحیت کے جواب میں فلسطینی مزاحمت کو دہشت گردی قرار دینا سراسر ظلم اور ناانصافی ہے۔ فلسطین سے آئے روز اٹھنے والی لاشیں اسرائیلی جارحیت اور مظالم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قبلہ اول کی حرمت پر مسلمان مر مٹنے کے لیے تیار، مسلم حکمران خود آگے بڑھیں اور فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلع نائب صدر چودھری اظہر محمود ورک نے کہا ہے کہ فلسطین میں جاری مظالم بند کروائے جائیں اور فلسطینیوں کو ان کے حقوق دلوائے جائیں۔ جب تک دنیا مسجد اقصی کی آزادی اور فلسطین کو ایک الگ ریاست تسلیم نہیں کرے گی، مشرق وسطیٰ میں امن کا قیام ممکن نہیں۔ عالم اسلام مظلوم فلسطینیوں کے لیے مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرے، فلسطین کا مسئلہ فلسطینیوں کے خواہش کے مطابق حل کیا جائے۔ فلسطین میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ عالمی قوتیں اور OIC فلسطین میں بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور مزدوروں پر ظلم اور ستم کو فوری طور پر رکوائیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں پر پانی، خوراک اور دیگر اشیاء ضروریات روکی گئی ہیں۔ عالمی دنیا فوری طور پر ان کی مدد کو یقینی بنائے۔ غزہ کی زمینی بندش کو ختم کیا جائے تاکہ مظلوم فلسطینی عوام تک پانی، خوراک اور ادویات زخمیوں تک پہنچانا ممکن ہو سکے۔ جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر فوری دباؤ ڈالا جائے۔ طاقت کے بلبوتے پر حق کی آواز خاموش نہیں کرائی جا سکتی، اس لیے فلسطینی عوام کو آزادانہ ریاست ملنی چاہیے۔ آج نہیں تو کل فتح فلسطین کی عوام کی ہوگی۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ اہل سنت والجماعت کے صوبائی صدر حافظ محمد اشرف طاہر نے کہا کہ فلسطینیوں نے ہر دور میں قوت ایمانی پر انحصار کو اپنانے کا واحد ہتھیار بنایا۔ عہد حاضر میں فلسطینیوں سے بڑھ کر کوئی بہادر اور نڈر قوم نہیں دیکھی۔ ان کے شیرخوار بچے بھی اپنے ایک ہاتھ میں فیڈر جبکہ دوسرے ہاتھ میں پتھر اٹھائے تحریک آزادی میں شریک ہیں۔ دنیا بھر کے باضمیر انسان اہل فلسطین کے حامی ہیں، تاہم شیاطین کا اسرائیل کی طرف جھکاؤ فطری ہے۔ کئی دہائیوں سے جاری اسرائیل بربریت کے خلاف فلسطینیوں کی آبرو جرأت مندانہ مزاحمت مستحسن ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان حکمران احکامات الہی اور قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں فلسطینیوں کی اس مرحلے پر بھرپور مدد کریں۔ دنیات کی نام نہاد مقتدر قوتوں نے غاصب اسرائیل کو فلسطینی کا ناحق قتل جبکہ ان کی آبادیاں مسمار کرنے سے نہیں روکا، لہٰذا اخلاقیات کی روح سے قتل اسرائیل کی حمایت کا حق نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جس طرح اعلانیہ خالصاً تحریک کا حامی ہے، اس طرح ماتوب فلسطینیوں کے حق آزادی کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتا۔ نام نہاد عالمی تھانے دار کا دوہرا معیار بار بار آشکار ہوتا رہتا ہے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پنجاب حکومت کی خصوصی ہدایات پر شیخ پورہ میں بھی بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد کی زیر صدارت بجلی چوری کی روک تھام کے حوالہ سے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے اہم اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس کے کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عثمان چلیس، اسسٹنٹ کمشنر SE واپٹا، پولیس اور اسپیشل برانچ کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں عوام پر بوجھ بننے والے بجلی چوروں کے گرد گھیرا مزید تنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ SE واپٹا شیخ پورہ سرکل کی ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد کو بجلی چوری کی روک تھام کے حوالہ سے بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ اب تک 1462 مقامات پر بجلی چوری کی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ بجلی چوری میں 120 ڈومیسٹک، 27 کمرشل، 10 زرعی اور 5 انڈسٹریل صارفین ملوث پائے گئے ہیں۔ بجلی چوری کرنے والے 1459 افراد کے خلاف اندراج مقدمہ کے لیے استغاثہ جات جمع کروائی گئے ہیں۔
शेखपुरा से आपको बताते चलें, गवर्नमेंट टीचर्स ने लाहौर सरगोदा रोड को बंद करके अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया। टीचर्स का कहना था कि हुक्मरान उस्ताज़ा पर जुल्म बंद करें और स्कूलों को प्राइवेट करने का फैसला वापस लें। टीचर्स का मजीद कहना था कि अगर इनके जायज़ मुतालबात पूरे ना हुए तो वो इस एहतजाज का दायरा वसी करते हुए लाहौर वज़ीर आला पंजाब हाउस का घेराव करेंगे। इस वजह से हम लोग लिख रहे हैं, लीव इनकैशमेंट ख़त्म कर रहे हैं। ये हमारा कसूर ये है कि हमारे रिज़ल्ट अच्छे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं बच्चों पे, हम बच्चों के लिए निकले हैं, स्कूलों को प्राइवेट क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? और हमारे जो हुकूक ये गसब कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ हम निकलें, उनके लिए हमें हमारे हुकूक दिए जाएं। सरकारी स्कूलों की निजकारी हमें नामंजूर है, उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे स्कूलों को दोबारा गवर्नमेंट के अंडर ही रहने दिया जाए, उनको प्राइवेट ना किया जाए। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में की गई तरमीम को कालादम करार देने के फैसले को चैलेंज करते हुए जुम्मे को नजरसानी के दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त गुजार अब्दुल जब्बार ने अपने वकील, सीनियर वकील और पीपीपी के सेनेटर फारूक एच नाइक के जरिए अदालत से 15 सितंबर 2023 के फैसले को कालादम करार देने की इस्तदा की है। इस्लामी इमारत ने अमेरिका, बरतानिया की इंटेलिजेंस अड्डों के रूसी दावों की तरदीद की है। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अमारत इस्लामिया के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान में अमेरिका और बरतानिया के इंटेलिजेंस अड्डों के क़याम से मुतालिक मास्को के दावे की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि किसी मुल्क को अफगान सरजमीन दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम ममालिक से मुतालबा करते हैं कि वो अफगानिस्तान में अपनी दुश्मनियों का पीछा ना करें, इन्हें अपना मुकाबला अफगान सरहदों से बाहर करने की कोशिश करनी चाहिए। अमारत इस्लामिया के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान इलाकाई मुकाबले का मैदान नहीं है। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सुप्रीमो नवाज शरीफ पाकिस्तान में सियासी वापसी से पहले अहम खिलजी ममालिक के दौरों के पहले मरहले में सऊदी अरब लंदन में अपनी 4 साला खुद साख्ता जलावतनी ख़त्म की। 3 बार के साबिक वज़ीर आज़म ने जमेरात को जद्दा से मुक़द्दस शहर के लिए रवानगी के बाद मक्का मुकर्रमा में उम्रा अदा किया और तवक्का है कि वो मुमलिकत में 4 या 5 दिन क़याम करेंगे। पार्टी ज़राए ने बताया कि सऊदी अरब में अपने दौर के दौरान नवाज शरीफ मुमलिकत के आला हिकाम के साथ साथ इसके सरमायाकारों से भी मुलाकातें करेंगे। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्री सफ़ीर तारिक दहरोग ने FM जलील जलानी पर अलविदाई मुलाकात की। FM ने हमारे 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कोशिशों के लिए MB का शुक्रिया अदा किया और इनके मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक OIC के खुसूसी एलची बराए जम्मू कश्मीर यूसुफ अलदुबे ने FM जलील जलानी से मुलाकात की। FM ने खुसूसी एलची का खैर मकदम किया, कश्मीरी अवाम के लिए UNSC की मुसलसल हमायत और मुतल्लका करारदादों के मुताबिक इनके हक खुदादारियत के लिए मजबूत अज़म की तारीफ की। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर्स में फ्रेंड्स ऑफ पुलिस इंटर्नशिप प्रोग्राम का इख्तिताम। इंटर्नशिप प्रोग्राम में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के 32 से तलबा और तलबात ने शिरकत की। 2 हफ्ते के इंटर्नशिप प्रोग्राम में सीनियर पुलिस अफसरान ने तलबा और तलबात को पुलिस वर्किंग और पुलिसिंग के मुख्तलिफ शोबों पर लेक्चर्स दिए गए। खबर शामिल करते हैं चिश्तियाँ से। एहतजाजी रैली निकाली गई। चिश्तियाँ लीव इनकैशमेंट, स्कूलों की निजकारी, ग्रेजुएटी का खात्मा, पेंशन में तरमीम समेत दीगर मुतालबात रैली कॉलेज रोड से शुरू होकर खत्म नबूवत चौक तक निकाली गई। उस्ताज़ा मुलाज़मीन का चिश्तियाँ शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। मर्द और ख़वातीन उस्ताज़ा के साथ साथ वकला हज़रात और बल्दिया के मुलाज़मीन ने भी हाथों में पैना फ्लैग्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। लीव इनकैशमेंट, स्कूलों की निजकारी, ग्रेजुएटी का खात्मा, पेंशन में तरमीम समेत दीगर मुतालबात रैली कॉलेज रोड से शुरू होकर खत्म नबूवत चौक तक निकाली गई। उस्ताज़ा मुलाज़मीन का चिश्तियाँ शहर मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। मर्द ख़वातीन उस्ताज़ा के साथ साथ वकला हज़रात और बल्दिया के मुलाज़मीन ने भी हाथों में पैना फ्लैग्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। तहसील भर के सरकारी स्कूलों को ताले लगाकर उस्ताज़ा सड़कों पर निकल आए और सरकारी मुलाज़मीन का मुआशी कत्ल बंद किया जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। उस्ताज़ा की गिरफ्तारियां और स्कूलों की निजकारियों और नाकिस पॉलिसियों की भरपूर मजम्मत करते हैं। निगरान हुकूमत होश के नाखुन ले। मुजाहिरीन का कहना है कि उस्ताज़ा की रिहाई मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहे। उस्ताज़ा के मुजाहिरों से सड़कें, ट्रैफिक जाम, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।